Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so today I'll be starting with the chapter number 15, Statistics. So here, first let's see the introduction. What is actually the statistics? Means आप देखो जो भी आपको given data होता है, if you work on that particular data to calculate any of the conclusion, whether you are finding the sum, total, average, percentage, so that all comes under the statistics. Okay, so the following table here, it is given a table. So this table shows how many minutes Asmita took to cycle to school every morning from Monday to Saturday. So now here in this tabular format, data is given. So which kind of data is given? It is given that Smita takes some time to reach from school, right, to home, or from home to school. So how many times she takes on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, to so on till Saturday is given. So on Monday she takes 20 minutes, Tuesday she takes 20 minutes, Wednesday it's 22 minutes, Thursday 18, Friday 18, and Saturday 20. So it's the average time given that she has taken. Okay, so now we see from the table that she takes 18 minutes on some days. मतलब आप देख सकते हैं, आप कोई एक दिन उसने 18 days लिए, कोई एक दिन 20, and maybe on some day she takes 22. So what you are supposed to find, you have to find out the average. So average find करने का method क्या है? First you have to take the sum total of all the records. जो given records है, what you will do, you will do the addition of all the records. After that you will count how many records it is given. Okay, means how many data, right? 1 2 3 4 5 6, so it's total 6. So you will divide that sum total by the number of records or the number of information column given. So it is 6, so you will write here 6. So total is 118. अब जब given data का total करोगे, you will get 118. So you will divide it by 6. So 118 divided by 6 will give you 19 is to 2 upon 3. So on an average she takes 19 is to 2 upon 3 minutes to cycle to school every day. So in this method, using this method, you can find out the average. Look here, another solve example is given. We will see this solve example, and according to this we are going to solve the practice set 54. Okay, so now let's see the solve example. Given is the question: a school conducted a survey to find out how far their students live from the school. Okay, now here it's given about the survey कि जो students है school के, वो कितने दूर रह रहे हैं घर से. So अब हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो गिवन बिलो इज द डिस्टेंस ऑफ द हाउस ऑफ 6 स्टूडेंट्स. नाउ अब जो गिवन डेटा है वो कितने स्टूडेंट्स के लिए है? 6 स्टूडेंट्स के लिए गिवन है. फ्रॉम द स्कूल जो डिस्टेंस है, स्कूल का डिस्टेंस, इट इज गिवन फॉर द 6 स्टूडेंट. लेट अस फाइंड आउट द एवरेज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल. सो हम लोग इसको यूज करके क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज फाइंड करेंगे. सो टू फाइंड आउट द एवरेज, व्हाट इज द फॉर्मूला? सम टोटल ऑफ ऑल द स्कोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर रिकॉर्ड किए. सो फर्स्ट सम करोगे आप. सो 950, 800, 700, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 750 मीटर. अब देखो, जब भी आप अर्थमेटिक परफॉर्म करोगे, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो जो गिवन रिकॉर्ड्स है, जो गिवन डेटा है, सबका यूनिट एक जैसा होना चाहिए, है ना. आप तभी सबको क्या कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. यूनिट एक जैसा होना चाहिए सबका. मीन्स अगर एक डेटा सेंटीमीटर में, तो सब क्या रहना चाहिए, सेंटीमीटर में. अब यहाँ पे देखो, एक डेटा आपका, दो डेटा, हाँ, दो जो रिकॉर्ड्स है, दो कॉलम का रिकॉर्ड, वो किलोमीटर में, एंड रेस्ट ऑफ ऑल द आर इन मीटर. जो बाकी सारे वो मीटर्स में. तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू हियर, यू विल कन्वर्ट दैट 2 किलोमीटर्स into the meter. Okay, so 1.5 kilometer कितने इक्वल रहेगा, simply multiply it by 1000, so it will get converted into 1500, and 1 kilometer will get multiplied by 1000 and converted into 1000 meter. अब आप क्या करोगे, सारे जो रिकॉर्ड्स है, सारे जो डेटा है, नंबर्स, उसको ऐड करोगे. सो 950, 800, 700, 1500 and 1750, you will add all these values. So you will get 5700. जब ऐड करोगे, so आपको क्या मिलेगा, 5700. So now you will divide 5700 by the number of scores. So number of scores, total number of students is 6, so you will divide it by 6. So now we'll divide it by 6. So now 6 ones are 6, 6 nines are
54, 3 will be carry forward, right? So 6 5s are 30 and remaining 0. So here you got 950 meter. So the average distance at which the students leave from the school, it is given as 950 meter, right? So that you have calculated. So using this method you can calculate the average. Okay, so now let's find out. So here we got the average formula. So average is equals to sum of all scores in the given data divided by total number of scores. Okay, average कैसे मिलेगा आपको? You will do the total, sum total of all the scores, and you will divide it by the number of scores. First question: the daily rainfall for each day of a week in a certain city is given in millimeters. अब आपको क्या है यहाँ पे? Daily rainfall है एक सर्टेन वीक का. सो ड्यूरिंग वीक के जो 7 डेज है, राइट? डेली रिकॉर्ड गिवन है 9 11 8 20 10 16 12 मीन्स फर्स्ट डे 9 मिलीमीटर, सेकेंड 11 मिलीमीटर अप टू सो ऑन. ये रिकॉर्ड गिवन है. सो आप क्या फाइंड करना है आपको? यू हैव टू फाइंड द एवरेज. सो एवरेज रेनफॉल कैसे मिलेगा आपको? सम ऑफ ऑल स्कोर्स, राइट? सम ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ रेनफॉल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेज, ऐसे मिलेगा, राइट? सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. So now look, here the record is given. First record 9, 11, 8, then 20, then 10, 6, 12. Okay. So ये इतने millimeters क्या है? ये rainfall है. ये देख क्या है? Amount of rain. So here we will have to find the average rainfall. So we will write down the formula first. Average rainfall is equals to sum of rainfall amount of all days, right? All 7 days divided by the total number of days, divided by the total number of days, or you can simply write down the formula for average. Now we'll substitute the values. अब क्या करोगे आप? सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यू. 9 plus 11 plus 8 plus 20 plus 10 plus 12 divided by total number of days 1 2 3 4 5 6 total. Divided by 7. So now just do the total of the given records. जो भी मैंने given values लिखी है उसका total करो. So now look here. 9 11 8 20 10 12 16. So now let's do the total first. Okay, 6 plus 2 8, 8 plus 8 16, 16 plus 10 26. So 6 you will write here 2 carry, right? 2 plus 1 3 plus 2 5 6 7 8. So you got here 86. So now you have to divide it by 7. Okay,
now we will divide it by 7. Okay, so 86 upon 7. 7 1 is 7, 1 is remaining, carry forward करोगे आप. Okay, 7 2 is 14, 2 remaining रहेगा, आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. अब देखो 7 के टेबल में 2 नहीं आता, तो यू हैव टू पुट अ डेसिमल एंड 0 हियर, राइट. सो नाउ अब 7 के टेबल में 20 नहीं आता है बट 12 आता है, 14 आता है सेकेंड पोजीशन पे. 7 2 is 14, 6 रिमेनिंग रहेगा. वापस से 0 इंक्रीज करोगे. 7 8 is 1 मिनट, वेट. 7 8 is 56, 4 कैरी फॉरवर्ड करोगे. सो अब डेसिमल के आप 2 डिजिट तक भी लिखोगे तो इनफ रहेगा. ओके, सो 12.28 समवॉट. सो इट मीन्स जो एवरेज रेनफॉल है दैट इज समवॉट 12.28 मिलीमीटर, राइट. मिलीमीटर मीन्स mm. सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था. ओके, नाउ सेकेंड. सेम मेथड यूज़ करना है एवरेज के लिए. आपको जो भी गिवन डेटा रहेगा सबका टोटल करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्कोर गिवन. ओके, so now let's solve the second part. During the annual function of a school, a women's self-help group had set up a snack stall. Okay, अब देखो एनुअल फंक्शन के स्कूल में जो वुमेन का ग्रुप था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उन लोगों ने क्या किए थे, एक स्टॉल लगाए थे. और हर आवर की उनकी जो सेल थी, मतलब हर आवर उनका 1 आवर पे 1960 का सेल हुआ, राइट. देन 830, 945, 800, 847, 970, इतना हर आवर का उनका सेल हुआ. व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द आवरली सेल्स. अब आवरली से उनकी क्या सेल हुई, आपको क्या करना है, फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे, एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. सो हियर विल ऐड ऑल द वैल्यूज है ना, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज ऐड करेंगे और उसको टोटल नंबर स्कोर से डिवाइड करेंगे. सो दैट इज 1 2 3 4 5 6. सो लेट्स राइट ऑन द डेटा फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व इट. सो अर्ली सेल्स जो गिवन है हम लोग पहले वो लिखेंगे. 960, 830, 945, 800, 847 and 970. Okay, so now look, first what we are supposed to find, we have to find average sale, right. So average sale is equals to टोटल अमाउंट है ना. आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल अमाउंट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स. अब कितने आवर्स का आपको डिटेल गिवन है ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 आवर्स का गिवन है. तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 और सारी वैल्यू जो भी गिवन है उसका एडिशन. सो 960 प्लस 830 प्लस 945 प्लस 800 प्लस 847 प्लस 970. ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सारे जो
ये वैल्यूज है पूरा टोटल करेंगे और उसको फिर 6 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो हम लोग को एवरेज अमाउंट मिलेगा. सो अब सब ऐड करते हैं. सबसे पहले 960 राइट, देन 830 830 945 800 847 and then 970. Okay, now let's add it. So how you will add? 5 plus 7 है ना, बाकी तो zeros है सारे. 5 plus 7 12. 2 you will write, 1 carry करोगे. ठीक है. फिर 6 3 9 plus 1 10 14 18 18 plus 7 19 25. 5 लिखोगे यहाँ पे, 2 कैरी करोगे राइट. देन नेक्स्ट 9 plus 9 18 20 28 28 plus 8 36 36 plus 8 44 44 plus 9. ठीक है, 44 plus 9 करेंगे तो हम लोग को 53 मिलेगा. सो नाउ हियर यू गॉट 5352. क्या मिला आपको? 5352. सो वी विल राइट हियर. इसको आपको क्या करना है? 6 से डिवाइड करना है. सो यू विल गेट द एवरेज वैल्यू. ओके, नाउ 6 1 जा 6. अब 6 के टेबल में 53 नहीं आता है राइट, तो उससे लेसर वैल्यू आपको चेक करनी है विच विल कम. सो 6 8 जा 48, 49 50 53. 5 रिमेनिंग रहेगा, कैरी फॉरवर्ड करोगे राइट. नाउ 6 9 जा 54, 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे. 6 2 जा 12. सो क्या मिला आपको? 892. मीन्स ऑन एन एवरेज उनकी अवरली सेल कितनी थी? ₹892. तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे? वर्ड्स में लिखोगे. हाउ यू विल राइट? जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया वैसे ही आपको क्या करना है? आंसर लिखना है इन वर्ड्स. So the average of the hourly sales is 800 is rupees 892. ऐसे आपको लास्ट में लिखना है. ओके, समझ में आया प्रॉपरली? अब जैसे हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे ही सेम आपको थर्ड एंड फोर्थ भी करना है. ओके, सो आई विल डू द थर्ड वन. अब फोर्थ आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भा इन 5 ईयर्स. अब देखो, एक विदर्भा प्लेस जो गिवन है आपको, वहाँ पे 5 ईयर्स का एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड गिवन है. व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 ईयर्स? सिंपल क्वेश्चन है. आपको रेनफॉल गिवन है, आपको उसका क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है. 900 650 450 733 एंड 400 मिलीमीटर्स, ये सारे रेनफॉल की अमाउंट गिवन है. आपको एवरेज फाइंड करना है. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट. So now let's solve it question. Okay, so the average rainfall we are supposed to find for those 5 years. Here we will write down the formula. Average rainfall is equals to sum of all records, right? अब क्या करोगे? जितने भी scores है, जितने भी record है, records of rainfall, क्या करोगे? उसका total करोगे और उसको क्या करोगे? number of years है ना, कितने number of years है divided by the number of years, that is 5. तो उसको क्या करना रहेगा? 5 से divide. So now let's write on the values. 900 plus 650 plus 450 plus 733 plus 400 divided by 5. ठीक है. So now we'll write down 900
650, 450, 733, 400, सबको क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है, उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो 0 प्लस 0, या ऑल जीरोस है ना, तो 0 रहेगा, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 5 5, 5 5 10, 3 13, 3 1 कैरी. ठीक है, so here you got 3 3. Now 9 plus 1 10, 16, 20, 27, 27 plus 4 31, so 3 1 double 3. Okay, we got the total. We'll write down here 3133 divided by 5. So now आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 6 जा 30, 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे, 5 2 जा 10, 3 कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगेन 5 6 जा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड करोगे. अब 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा, सो यू नीड टू पुट अ डेसिमल हियर एंड इंक्रीज 0. 5 6 जा 30, सो क्या मिला आपको, एवरेज रेनफॉल 626.6 मिलीमीटर. So the average of those 5 years is, final answer आप words में लिखोगे, the average of those 5 years is 626.6 millimeters. Okay, so here we have completed question number 3. Next question number 4 क्या है, मैं आपको explain करती हूँ. Okay, so you will try it. Now fourth question, a farmer bought some snacks of animal feed. अब उसने कुछ स्नैक्स लाया, मीन्स जो बोरी रहती है ना, वो उसने क्या लाया, एनिमल फीड, मीन्स एनिमल को चारा देते हैं ना, खाना खिलाते हैं वो. सो द वेट्स ऑफ द सैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम्स. अब देखो वो जो सैक है उसके आपको वेट्स गिवन है हर एक के इंडिविजुअली. अब आपको क्या फाइंड करना है, जस्ट एवरेज वेट फाइंड करना है. ओके, सो आप क्या करोगे, टोटल करोगे, टोटल ऑफ वेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैक. 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना. सो आप क्या करोगे, टोटल को फिर 8 से डिवाइड करोगे. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू ट्राई दिस last question. So here we have completed practice set 54.